جی نحمدو، میں سٹارٹ کرتا ہوں پھر، ٹھیک ہے؟ نحمدو ون صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو پروگرام ہم سخن ساز میں خوش آمدید۔ ہم پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں، جس کی صدر حاصل کریں گی محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ۔ جی جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جی ماشاءاللہ سے روبینہ صاحبہ نے ہم کے اشعار نعتیہ تلاوت، اور اب میں چاہوں گا کچھ اشعار حمد اور نعت کے پیش کرتا ہوں۔ نعت کہنا، اسے پڑھنا، اس کو سن لینا، یہ صدقہ سعادات ہے خدا کا چن لینا۔ وہ ایک وقت دعا چشم نم حضرت آدم، وہ ایک واسطہ میرے آقا خدا کا سن لینا۔ سب نبی سارے فرشتے الہامی کتابیں ساری، بنے گی نعت حضور سب کی وفا چن لینا۔ مکان و لا مکان ہو منتہا یا روز حشر، یاد رکھنا نام اس کے ساتھ سن لینا۔ ایک پیغام ہے ارحم یہی ازل دا ابد، اللہ سے کن لینا اور کن سے فایا کن لینا۔ تو محترمہ کوسی صاحبہ کا نیٹ کا مسئلہ ہو گیا شاید، تو میں پھر دعوت دیتا ہوں محترمہ گل سنوبر غزل صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے 2 منٹ اپنے تعارف کے بعد جو انہوں نے ایک آج مقالہ پیش کرنا ہے وہ کریں گی، اور ان کے بارے میں یہ بتاؤں کہ بدھ والے دن انشاءاللہ ان کی جو یہ کتاب ہے محبت ڈھونڈ لی ہم نے، اس کی تقریب رونمائی ہے، مبارک ہو آپ۔ تو جس پہ انشاءاللہ کا بھی تبصرہ ہوگا، اور لہذا آج ہم نے ان کو ڈھونڈ لیا ہے۔ محترمہ گل سنوبر غزل صاحبہ۔ السلام جی علیکم۔ آپ وعلیکم السلام۔ دعوت دینے کا بے حد شکریہ۔ میرا نام گل سنوبر غزل ہے اور میرا تعلق شہر سرگودا سے ہے، اور پچھلے 7-8 سال سے میں یہاں لاہور میں مقیم ہوں۔ 2008 اور 2009 میں میری شاعری کی کتابیں منظر عام پہ آئیں۔ پہلی کتاب کا نام تھا مجھے کوئی تو نام دو، جو کہ نثری نظموں کا مجموعہ تھا، اور دوسری کتاب محبت ڈھونڈ لی میں نے غزلوں پر اور نثری نظموں پر مشتمل تھی۔ پھر 2011 میں میری بچوں کے لیے نصابی کتاب آئی، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سے تھا تو میں نے انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے پریکٹیکل بک کو ترتیب دیا تھا۔ اس کے بعد شادی کے بعد میں انگلینڈ چلی گئی اور ایک کافی لمبا بریک آیا، اور وہاں لکھنے لکھانے کا سلسلہ میرا جاری رہا، جو بہت زیادہ رجحان میرا نثر کی طرف رہا۔ تو انشاءاللہ مستقبل میں ایک کتاب ہوگی جو نثر پر مشتمل ہوگی، ایک کتاب میری جو کوشش کر رہی ہوں شاعری کی ہو، اور اس کے علاوہ میرا اپنا چینل ہے GSG ولاگ نام سے، گل سنوبر غزل کے نام سے، جس پر میں مختلف شاعر ادیب ان کی کتابوں پر تبصرہ کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور بہت شکریہ۔ اور اس کا بس فارمیٹ یہی ہے کہ 4 سے 5 منٹ کے اندر میں ایک شاعر کی زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں اس وقت لاہور میں ایک پرائیویٹ اسکول کی سیکشن ہیڈ کے طور پر پچھلے 5 سال سے میں اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ پوری کر رہی ہوں۔ تو آج مجھے موقع ملا ہے ارحم صاحب پہ بات کرنے کا۔ آپ بے شک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے ہی شعر سے آغاز کروں گی۔ زندگی پھول تو نہیں صاحب، ہاں مگر پھول سے بھی پیاری ہے۔ سٹارٹ کروں نا میں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی جی آ رہی ہے، آپ کریں۔ ارحم روحان کی شاعری میں داخل ہونا ایک ایسے باغ میں قدم رکھنے جیسا ہے جہاں ہر قدم پر خوشبو بکھری ہے۔
ہر لفظ ایک جذبے سے لبریز ہے. آپ کی مختلف کتب منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں سے 4 شاعری کی کتابیں ہیں، اور ہر کتاب ہی جذباتی سفر کی نمائندگی کرتی ہے. آپ مختلف موضوعات کو شاعری میں خوبی سے سمیٹتے ہیں. قاری ان کی نظموں میں خود کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. محبت، امید، درد، حوصلہ اور انسانیت جیسے موضوعات کو وہ نہایت نرم لہجے اور دل کو چھو لینے والے انداز میں بیان کرتے ہیں. ان کی شاعری نہ صرف جذبوں کا اظہار ہے بلکہ روح کی بھی تربیت کرتی ہے. ایک چیز جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے وہ ان کا نوجوانوں کے لیے فکر اور شعور کے ساتھ لکھنا ہے. وہ نہ صرف جذبات کی زبان سمجھتے ہیں بلکہ طلباء کے لیے عملی زندگی کی راہیں بھی روشن کرتے ہیں. کامیابی کے سفر، خود اعتمادی، وقت کی قدر اور سیکھنے کی لگن جیسے موضوعات پر ان کی تحریریں ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہیں. آپ اپنے اساتذہ کی بے پناہ عزت کرتے ہیں اور یہ قدردانی ان کی کتابوں سے بھی جھلکتی ہے. معاشرتی مسائل پر آپ کی شاعری خاموش نہیں رہتی. ظلم، ناانصافی، طبقاتی فرق، انسانی قدروں کی پامالی جیسے موضوعات پر وہ خاموش احتجاج کی صورت میں آواز بلند کرتے ہیں. مختصراً ارحم روحان کی شاعری دل کو چھو لینے والی، سوچ کو جگانے والی اور روح کو روشن کرنے والی ہے. ان کی کتابیں صرف ادب نہیں، احساسات کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہیں. میری طرف سے یہ تبصرہ ایک ادنا سی کوشش ہے جو ان کے وسیع اور گہری سوچ کو بیان کرتی ہے. آپ کے لیے آپ کا ہی ایک شعر جو زندگی کی طرف مثبت قدم بڑھانے میں مدد دیتی ہے، اور اس کے ساتھ میں اپنا تبصرہ بھی ختم کروں گی. دکھ کے لمحوں کو یاد کرتے ہو، دکھ کے لمحوں کو یاد کرتے ہو، غم بھلانے کی بھی بات کر لو. میں ارحم روحان صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے تمام معاشرتی مسائل کو بہت بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے آج ان کے لیے بات کرنے کا موقع ملا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا محترمہ گل صنوبر صاحبہ. بہت مختصر مگر جامع الفاظ آپ نے نظر کیے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ اپنا پیش کریں تجزیہ. ڈاکٹر صاحب اپنا مائک آن کر لیں. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے ہم صاحب کا نا نیٹ کہیں ہو گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، تو آپ اپنا تبصرہ پیش کریں. جی، تبصرہ کاری کا عمل سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طرف زیر تبصرہ کتاب کے مدرجات و مشمولات کو سامنے لانے میں مددگار ہوتا ہے، وہاں خود تبصرہ کار کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کا جو لکھنے پڑھنے کا عمل ہے، اور کسی کتاب کو اس کے موضوعات، اس کی فکر اور اس کے فن کے تناظر میں سمجھنے اور سمجھانے کا جو میلان ہے وہ بڑا قابل قدر ہوتا ہے. اس سے قاری بھی کتاب پڑھنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو بوجود اس کتاب کو دیکھ نہیں پایا، پڑھ نہیں پایا. تو یہ ایک طرح سے تبصرہ کار پل کا کام کرتا ہے لکھنے والے اور سننے والے کے درمیان. اور سننے والے سے میری مراد وہ سننے والا ہے جو اس کتاب کو پڑھنے کی نعمت سے ابھی محروم ہے. تو یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں، دلنشین صورتحال ہے. ڈاکٹر وزیر آغا نے تبصرہ کاری یا جو تنقید کے 2 میلان بڑے واضح کیے ہیں. ایک تو ان کا ایک مضمون ہے اور کتاب کا نام مجلسی تنقید ہے. اس کا آخری مضمون ہے مجلسی تنقید. اس میں انہوں نے مجلس کے جو تنقید ہے اس کے 2 پیرائے بیان کیے. ایک تو وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھ کے بندہ اپنی
जो लिखना है, लिखाने का अमल है, और करने का अमल है, तफक्कुर का, तदब्बुर का, उस अमल से गुजरता है। और दूसरा है कि किसी महफिल में कोई अफसाना, कोई नॉवल, कोई या कोई गजल नज्म सुनी और उसके बारे में फिलबदी कोई अपने तासुर का इजहार करना, ये मजलसी तनकीद है जो इस वक्त मैं भी उसका इजहार कर रहा हूँ, जो मैं मैम का तबसरा सुनने के बाद राय दे रहा हूँ। ये मजलसी तनकीद और इस तरह के मामलात जो हैं वो हल्का अरबाब ज़ौक़ में अपने क़याम से लेके 1939 से लेके अब तक जारी है। बड़ी सेहतमंद रवायत है। तो मैम कोई सनोबर गजल साहिबा ने अरहम साहब की जो किताबें हैं उन्हें सराहा है और उसे एहसासात का इंसाइक्लोपीडिया भी करार दिया है और ये भी कहा है कि वो जिंदगी की तरफ मस्बत अंदाज से देखने के आदी या देखना चाहते हैं। और अदीब और शायर का यही मनसब है कि वो समाज सुधार के लिए काम करता है। मेरी नज़र से आज तक कोई ऐसा शेर नहीं गुजरा जिसमें मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने के लिए लोगों के जज्बात को उभारा गया। पॉजिटिव सोचना एक अदीब की शान है और अरहम साहब भी उन शायरों में और उन दानिशवरों में शामिल हैं जो अपने जहन में मुआशरे को सुधारने का जो पैमाना उनके पास है, वो उनकी शायरी है, वो उनकी गुफ्तगू है, वो उनकी नस्र है, सो उसमें वो महारत रखते हैं और वो जज्बों के इजहार के हवाले से मोहतरमा मैम ने जो निशानदही की है, बिलाशुबा मुझे भी अरहम साहिब के जो किताबें हैं 4 में देखने का, पढ़ने का मौका मिला है। बिलाशुबा उनके यहाँ जज्बे की फरावानी है। जज्बे के साथ जो चीज़ शायरी को खास तौर पे आगे लेके जाती है वो एहसास है। जज्बा हो और एहसास ना हो तो फिर वो एक खला जो है वो दिखाई देता है। अरहम साहब की जो किताबें हैं उनमें ये दोनों पहलू मौजूद हैं कि वो जज्बे के शायर भी हैं और एहसास के भी शायर। अगरचे जज्बा क्या है, एहसास क्या है, इस पे अलग गुफ्तगू हो सकती है और शायरी में इनकी ज़रूरत क्यों है उस पर भी बात होनी चाहिए। कभी कभी इस तरह के मौज़ूआत की लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए कि ये जो हम रोज़ सुनते हैं जज्बा क्या है, एहसास क्या है, तफक्कुर क्या है, तदब्बुर क्या है, तो उससे बहुत कुछ हमें नई जहतों के बारे में इल्म हो सकता है और हमें ये काबशें करते रहने चाहिए। तो मैम ने बहुत मुख्तसर तबसरा लिखा लेकिन वो पहलू बयान करने में वो कामयाब दिखाई देती हैं जो अरहम साहब की शायरी को जज्बे और एहसास की बुनियाद को इस्तवार करती हुई दिखाई देती। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब, आपने बहुत अच्छा तज्ज़िया इनका पेश किया। और आपका भी मोहतरमा गुल सनोबर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब ज़ेबुन्निसा ज़ेबी आपी ने हमें ज्वाइन किया है और साजिद अली अमीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद आपको। तो और एक तनवीर सलीम बेताब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी, आपको भी खुश आमदीद। तो आगे मैं दावत देती हूँ मोहतरमा कुदसी साहिबा को कि वो अपना पेश करें जो उन्होंने इन किताबों के बारे में लिखा है, तबसरा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं अरहम साहब को हदिया तहनीयत और हदिया तबरीक पेश करती हूँ। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग तो सब पीछे रह गए। 80 का वो पंजाबी में कहते हैं ना, 80 वेगदे रह गए ते पंजाब दा मुंडा वारी लै गया।
तो आशा ये आपकी शफकत है। जी मैं रवीना साहब, मैं समझती हूँ कि अगर कोई मेहनत के मानी जानना चाहता हो तो जी अरहम साहब के इस अदबी काम को देख ले, पढ़ ले। अच्छा, ये तो मैंने उस दिन लिखा था उस दिन मेरी तबीयत भी बड़ी खराब थी सॉरी। तो 2 दिन पहले मुझे ये कुतब दिखाई थी, अ, इसलिए जितना काम करना चाहिए था उतना तो ना हो सका। अच्छा, सबसे जी पहले तो ये है कि मैं रूहान साहब के नाम से ही बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। नाम। और सबसे पहले तो, और ये मुझे ना, इसमें, इस नाम में मुझे रूहानियत ही रूहानियत दिखाई देती है सॉरी। अच्छा जी, जैसे आप सबको पता है कि इनके 4-5 मजमूए आ चुके हैं, और नामों का भी आपको मालूम है, फूल, खुशबू और शबनम। और इसके अलावा मेरे एहसास में तुम हो, जरा तुम हौसला रखना, और जरा तुम मुस्कुरा देना वगैरह। तो जो जाती तौर पर ना, जो जाती तौर पर मुझे किताब पसंद आई वो है जी, जरा तुम हौसला रखना। तो जी इसमें ये सब नाम जो है ना, अफसानवी भी हैं और शेरियत लिए हुए हैं। जरा तुम हौसला रखना का इंतसाब आप ही देखिए कि किसके नाम है। मैंने किए कई गुलाब उसके नाम, मैंने किए कई गुलाब उसके नाम, और जिंदगी का इंतसाब उसके नाम। हाँ, मजमूए में इब्तिदा जाहिर है कि हमदे बारी ताला से की गई है। तेरे करम की तमन्ना जगाए बैठा हूँ, शमे उम्मीद दिल में जलाए बैठा हूँ। उसके बाद नातों के जी हदिये शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि हसी सफर पे अब होने लगा रवाना मैं, हसी सफर पे अब होने लगा रवाना मैं, हर एक अहले नजर अश्क अश्क तर सा लगता है, हर एक वाह अहले नजर अश्क तर सा लगता है। और दूसरी नात में अशार भी जो हैं वो भी वाला गोहर है। अम, मन मुरादों की झोलियां भर लो, आज सौगात है मदीने की, इनके कदमों में सर रखना हो नसीब, ख्वाहिशों की बारात मदीने ले जाएंगे। और उसके बाद फिर गजलियात का सिलसिला है। शुरू में मशहूर व मकबूल नज्म जो है वो वहाँ पर जो मेरी चाहत का जो रहा है, और गजल के नाम जरा तुम हौसला रखना जो है, यानी जो किताब का नाम है उस पर गजल उससे मुनासिबत रखती हुई गजल है। और जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, जरा तुम हौसला रखना, तुम्हें दिल से लगाऊंगा, जरा तुम हौसला रखना। और ये शेर भी मबनी बर हकीकत है कि जमाने ने सिखाए हैं सबक जिनका पता न था, जमाने ने सिखाए न था, तुम्हें जरा हौसला रखना। यानी आगे की नाशान में कितनी बेसाख्तगी है, कितनी अपनायत है। और एक और है कि जी, सिला कोशिश का मिलता है यहाँ फरमान कुर्सी है, सिला कोशिश का मिलता है यही फरमान कुर्सी है। मैं किस्मत को मैं किस्मत को बनाऊंगा, जरा हौसला रखना। सॉरी, ये हर शेर जो है ना बेसाख्तगी की उनका नमूना है, बेसाख्तगी है। और हम साहब आज से 2 साल पहले मालूम नहीं कहाँ थे, अगरचे देर से हम लोगों में शामिल हुए हैं, मगर बहुत आगे निकल गए। बहुत से लोग हैरत में हैं। अच्छा जी, हफ्ते के तकरीबन तमाम दिन ही पैक मिलते हैं, और जो खूबसूरत असमा से मौसूम किए गए हैं। अच्छा, और ये गजल का जो पहला शेर कितना खूबसूरत है। तुम खुद में कशिश क्यों पैदा नहीं करते,
हसरत से किसी शख्स को देखा नहीं करते। बहुत अच्छे अंदाज से, नासेहाना अंदाज से और तंबीही बात की गई है। हर शख्स नहीं होता हर शख्स के काबिल, हर शख्स को अपने लिए परखा नहीं सकते। और ये जो है तजर्बाती, ये जो खूबसूरत शेर है तजर्बाती है, और एक दर्दमंद दिल वाले की तरह से ही अपने तजर्बे से रूबरू शख्स को आगाह कर रहे हैं। और एक और गजल के शेर में एहसास से भरपूर बात करते हैं, उनसे पाया खिताब बेहिसी का, उनसे पाया खिताब बेहिसी का, जिसका एहसास किया था हमने, जिसका एहसास किया था हमने, उनसे पाया खिताब बेहिसी का। और फिर उनके हसास दिल से ये आवाज भी आती है, मेरे अंदर है एक तन्हाई, मेरे अंदर है एक तन्हाई और बाहर एक मेला है। वाह, और ये खालिस तगज़्ज़ुल का शेर है और महबूब से खुला इजहार है। ये मिसरा, ख्याल इसका ही मेरे लफ्ज अमर करता है, ख्याल उसका ही मेरे लफ्ज अमर करता है। और याद करके तेरी मुस्कुराहटें और बेरुखियां, याद करके तेरी मुस्कुराहटें और बेरुखियां, हर रोज सिमटते हैं बिखर जाते हैं, हर रोज सिमटते हैं बिखर जाते हैं। यहाँ सनत तजाद का इस्तेमाल भी बहुत खूब किया है, यानी मुस्कुराहटें और बेरुखियां और सिमटना और बिखरना, ये सब जो है सनत तजाद है। बल्कि पूरी ये गजल जो है ना, उसमें यही सनत पाई जाती है, यानी कि सनत तजाद। बहुत से अशार में हमें सनत तलमी भी मिलती है। सनत तलमी मसलन के बाकी कितने बचेंगे साथ, बाकी कितने बचेंगे साथ, साहिब दिए बुझा कर देखो, साहब दिए बुझा कर देखो। अब नज़ाहिर के इसका बैकग्राउंड तो आप सबको मालूम ही होगा, ये दिए बुझाने से क्या मुराद है, ये भी सनत तलमी है। फरमा और ये है कि अब भी समझ ना पाए तो सर जोड़ें और हाथ, फरमाने खुदावंदी ला तकनतू तो है। तशबीहात का इस्तेमाल भी खूब है, कहीं पर जिंदगी को बर्फ के मानिंद बताया है, कहीं पर हवा की मानिंद, और फिर सजा जैसी और रेत की तरह और हिना जैसी, तीरगी उजाले, ये सब जो है, और जिंदगी जो है वो दर्द की मानिंद है, हवा जैसी है, जिंदगी जन्नत की मानिंद है। दूसरा खूबसूरत मजमुआ जो इनका है वो फूल, खुशबू और शबनम है, और जिसका हकीकत मैं उसके बारे में तो अभी तसरा नहीं कर सकती। मैंने तो बस वो एक किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं पढ़ती रही, बाकी भी इंशाल्लाह मैं पढ़ती रहूंगी। जरा तबीयत की खराबी की वजह से मसला बना हुआ है। अच्छा जी, और खूबसूरत मजमूआ जो है ना शबनम, जिसका हकीकत भरा शेर है, कौन सुनता है तोती की आवाज, निगार खाना भरा है खुशामद से, कौन सुनता है तोती की आवाज, निगार खाना भरा खुशामद से। ये मुझे ये अपना शेर लगता है। ये सब सबका है, ये बाकी शेर है। मुझे अपना ये के लिए ये जो है हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि अभी फर्ज करो कौन ठीक है कौन खराब, देखो पस मंजर भी, सुनो न सिर्फ आवाज, ये जजिस के लिए है, वो कला के लिए भी है। अच्छा जी, ये बहुत सी किताबों के नाम जो हैं, तमाम जो औसाफ हैं उस्ताद मोहतरम मुख्तार तलहरी साहब ने बयान कर दी हैं। मैं कुछ कहूँ तो सही ला हासिल होगी। नहीं, शुक्रिया। आपके अल्फाज भी बहुत कीमती हैं, आप भी साहिब सदूर में शामिल हैं। माशाल्लाह, आपके शफकत भरे अल्फाज हैं। जी जी, आप जारी रखें। जी, बस रूहान साहब को आखिर में फिर मैं एक बार मुबारकबाद दूंगी। बहुत खुशी हुई भाई, बहुत खुशी हुई। और मैंने कहा ना वो क्या गया था कि इकबाल ने क्या किना दा मुंडा वारी ले गया पंजाब दा मुंडा।
चले, बहुत शुक्रिया आपका, ये थी बहुत ही मोहतरम। तबीयत जी की खराबी की वजह से बड़ा मसला बना हुआ है, 1 माह हो गया है। बस जी खुदा ठीक करे। तो हाँ पता जी। नहीं क्या कुछ कहती गई। नहीं नहीं, आपके अल्फाज, जितने भी आपने अल्फाज दिए बहुत मोहब्बत भरे और शफकत भरे। तो वैसे शायरों को ज्यादा दिलचस्पी भी शायरी से होती है, जाहिर है उनकी जो किताबें दूसरी हैं वो मौज़ूआत और हैं, नसर के हैं, तो इसलिए आपने उन पे गौर नहीं किया होगा। वो भी अच्छे मौज़ूआत हैं उनके, उनकी किताबों के। अरम रूहान साहब के बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा कुदसिया कुदसी साहिबा। जी डॉक्टर साहब, आप कभी अपना। इंशाअल्लाह असर पर भी बात कर लूंगी अगर हो सकी जी तो। जी। नहीं, वैसे शायरों के दिल में उतरने के लिए शेर ही काफी होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना, अपनी अपनी वो होती है, एक मिजाज के मुताबिक चीज चलती है ना। तो बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, आप इनके तबसरे पे अपना तज़किया पेश करें। जी मैम, मैम ने बहुत ही उम्दा राय दी है। और जो शायरी होती है वो आपने देखा है कभी एक माली रविश जो होती है उसके किनारे बैठा एक टंकी बड़ी सी होती है, उसके साथ वो शाखें और फूल चतर रहा हो। जी और ये इसे कहते हैं मिकराजे गुलगीत, यानी वो जी कहते से वो रविश होती है या फूल होते हैं, वो भरी हुई शाखें होती हैं, उनको वो हटा के तो एक लाइन को सीधा करता है। तो शायर भी यही अमल दोहराता है अपने अंदाज। उसके पास जो कुछ होता है फिक्र का सामान, वो उसके जरिए गोया एक मौसम निशात है जिसकी वो आरजू करता है। वो चाहता है कि ये जो दाएं बाएं जो कुछ हो रहा है, इस्तेहसाल हो रहा है या दीगर मामलात हैं, चाहे इंसान प्यार मोहब्बत की बातें करे। और फिर ये शेरों की मिसालें जो दी हैं उसमें खास तौर पे उनके तशबीही निज़ाम को मौजू बनाया है। जिस तरह तशबीहात का इस्तेमाल किया है हम साहिब ने, उसकी बदौलत उनके जो मुख्तलिफ जाविये हैं शेर के, मुख्तलिफ चेहरे हैं, उन्हें नुमाया करने में और उनको समझने में मदद मिली। तो ये तबसरा मैं समझता हूँ कि एक साहबे किताब के बारे में जो उसका कारी है, वो अपनी राय के जरिए उसके अफकारे पिनहा को सामने लेके आता है। तो जी आज कुचिया कुची साहिबा ने यही अमल दोहराया है और अपनी वक्ती राय जो है उससे हमें सरफराज किया है। मैं उन्हें हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और खुशी है मुझे कि ये किताबों पे जो तबसरा है, कुतुब बीनी का जो रुझान है, जिसके बारे में आम तौर पे हम शिकवा गुजार रहते हैं कि किताब पढ़ी नहीं जाती, किताब पे राय का इजहार नहीं किया जाता। जी किताब दी जाती है, किताब फरोख्त भी होती है। और किताब जो है जब तक लिखने पढ़ने वाले अक्ल व दानिश रखने वाले अहबाब जिंदा हैं, किताब कभी मंजर से गायब नहीं हो सकती। ये एक सॉफ्ट कॉर्नर है एक अदीब का, एक शायर का, एक समाज का, जो किताब के जरिए हासिल होता है। तो कलम के ताश का रिश्ता तो बहुत ही मुस्तहकम है। इसमें वक्ती तौर पे कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन ये कहना कि ये अब किताब का दौर खत्म हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा। कि किताब तो वहां नहीं खत्म हुई जहां हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। जी हम तो किताबें चंद 100 छापते हैं, बल्कि अब तो दर्जनों के हिसाब से 50 या 100 किताब छापते हैं। ये जवाल हमारा कारी की उस तरह की दिलचस्पी नहीं है। हालांकि यूरोप हमसे आगे है, वहाँ तो किताबें जो हैं वो हजारों की तादाद में छपती हैं। मैं इससे अगर ज्यादा कहूँ तो वो मुबालगा नहीं होगा। जी आप सही देखें कह रहे हैं। किताबें सही ऐसी हैं
हजारों नहीं लाखों की तादाद में छपी हैं और लोगों ने बुकिंग करा के वो किताबें आपसे। तो बिल्कुल। हमारे इस बड़े अजीम में जो मुख्तलिफ अकदार पे जवाल आया है, उनमें एक पहलू, एक जवाल की निशानी किताब भी है। तो इससे मायूस नहीं होना हमें, बल्कि अपनी काविशें इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए जारी रखनी चाहिए ताकि वो रूठा हुआ कारी फिर किताब की तरफ आ जाए। तो तबसरे का जो एक फायदा ये होता है कि किताब के मंदरजात सामने आ जाते हैं और पढ़ने वाले को और उसमें एक तशवीक पैदा होती है कि मैं भी ये किताब। आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने तज्ज़िया पेश किया। तो वैसे तख्लीकार इंटरनेशनल का ज़्यादातर मकसद तो यही है किताबों के बारे में ही, कि किताबों से रोशनाई तालिब इल्मों को भी हो और आम इंसान को भी हो, ताकि वो पढ़ने में दिलचस्पी ले सकें। और किताबों की रैपों को इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है कि ये लोगों की नज़र में आए और उनको पढ़ने में दिलचस्पी आए और वो मुताले में ज़्यादा लगन और शौक देखें। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कंवल साहब ने। खुशामदीद सर आपको। तो अब बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी आपी को मैं दावत देती हूँ कि वो अपना जो जी जी कलाम पेश करना चाहें या जो भी अपना जी बिल्कुल। कोई मकाला या अरब जो बुरहान भी। के हवाले से तो उस दिन हमने गुफ्तगू कर ली थी, उनके प्रोग्राम के दौरान मैंने गुफ्तगू कर ली थी। जी तो आज मैं एक अफसाना पेश करती हूँ, छोटा सा। असल जी में अफसाने असल में बड़े बड़े बहुत होते हैं, तो वही सोचना पड़ता है कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं। तो इत्तेफाक से एक छोटा अफसाना हाथ आ गया है, तो जी जी वो मैं पेश करती हूँ। इसका उन्वान है साजिश। जी और इस्मत अपनी फाइल पर झुकी, इंतहाई महवियत से काम में मसरूफ थी कि उसे अचानक चूड़ियों की खनक और पायल की झनकार सुनाई दी। वो एकदम चौंकी, दौड़कर खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। उसकी नजरों के सामने से यकलक एक रोशनी सी कौंध गई। वो सांवला सा हुस्न लाफानी चांद की ठंडी किरण की मानिंद इस्मत के वजूद को महसूस सा कर गया। कमर पर लहराती हुई लंबी चोटी पर मोतिये की कलियों की बहार, 5.5 फीट का कद, भरपूर सरापा, पतली नाजुक सी बल खाती हुई कमर, कौसो कजा के रंगों की साड़ी उसके नाजुक वजूद को बार बार छेड़कर शरारत से हवा में लहराने लगती। खूबसूरत चमकते हुए हाथों पर बहार देती हुई नेल पॉलिश के शोक रंग उसकी मखरूती उंगलियों में नगमे की लय और गनायत को और उजागर कर रहे थे। कलाइयों से लिपटे हुए फूलों के गजरे और उनके साथ धनक रंग कांच की चूड़ियां, उसका रूप मुजस्सम शेरियत था और वो मुकम्मल गजल। इस्मत इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि चंद लम्हों बाद शिराजी अपने कमरे से खरामा खरामा चलते हुए बाहर आए और वो मिसेस शिराजी के पहलू में बैठकर दफ्तर से बाहर निकल गए। कुदरत भी कभी कभी इंसान को तमाम नेमतों से एक साथ ही नवाज देती है। क्या जोड़ी थी, उन पर जितना भी रश्क किया जाता कम था। शिराजी किसी देश के शहजादे से कम न थे। वो धीमे धीमे सुरों में जब गुफ्तगू करते तो कायनात गुनगुना उठती। वो शेरो अदब के दिलदादा थे। अक्सर उनके इर्द गिर्द यार दोस्तों की महफिलें जमी रहती। शिराजी को सैकड़ों अशार जबानी याद थे और वो अपनी इसी खूबी की बदौलत लोगों का दिल जीत लिया करते थे। वो जहानत और इल्मियत में यकता थे। उनका शुमार चंद बेहतरीन दिमागों में होता था। जब कोई मसला किसी से ना सुलझता तो उनकी राय और मशवरा इस मसले को चंद लम्हों में हल कर डालता। शराजी इंतहाई कमगो वाक़या हुए थे, लेकिन वो जितना भी बोलते वो लफ्ज मोती की तरह चुन लिए जाने के काबिल होते। बड़ी बड़ी गहरी आंखें जो हजार शरारतें छुपाए घनेरी पलकों तरह झुकी रहती, और जब भी ये नजरें अपनी किसी मुखातिब पर आश्कार होती सामने वाले के दिल में हलचल मचा देती। गर्ज के शिराजी और मिसेस यास्मीन शिराजी की जोड़ी कुदरत का एक हसीन शाहकार थी। शिराजी कमगो थे तो यास्मीन शोख चंचल और मिजा उनकी फितरत का खासा था।
शराजी गोरे चिट्टे थे तो यास्मीन सामले, हसीन और तीखे नक्कुश का लासानी नमूना। शराजी ज़हीन और फतीन थे तो यास्मीन भी इल्मियत और काबिलियत में किसी से कम ना थी। शराजी खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे तो यास्मीन भी नवाब खानदान की चश्मो चिराग थी। शराजी अगर सूरज की तरह भरपूर रोशन दमकता हुआ हुस्न और खूबसूरती का नमूना थे तो यास्मीन भी रोशन चांद की ठंडक से किसी तौर कम न थी। शराजी आसमान पर फैली हुई कहकशा की मानिंद थे तो यास्मीन भी कौसो कज़ा की धनक रंगों का हसीन इम्तिजाज थी। इस्मत ना जाने कब से मिस्टर शराजी और यास्मीन शराजी के ख्यालों में गुम थी कि उसे चपरासी ने आकर चौंका दिया। उसे साहब ने बुलाया था। उसे जुबैर साहब ने समझाया, इस्मत कल से ये असाइनमेंट सुबह 11 बजे तक तैयार करके शराजी साहब से चेक करा के तुम्हें फैक्स करना होगा। इस्मत जी कहकर अपनी सीट पर आकर बैठ गई। तब से वो घर आकर भी अजीब कश्मकश में थी। अकेले फाइल लेकर वो शराजी साहब के कमरे में कैसे जाएगी। वो सोच सोच कर रात भर जागती रही। जाने कितने ही वाक़े उसके कानों में गूंजने लगे। शराजी साहब बहुत दिल फेंक वाक़या हुए थे। वो इतने रोमांटिक थे कि सफाई करने वाली की चाल में भी दिलकशी तलाश कर लेते थे। सुना है पिछले माह एक नई सफाई करने वाली पायल खनकाती हुई उनके कमरे की सफाई करने आई थी तो उसकी कमर की लचक उन्हें इतनी पसंद आई कि वो चोरी से मन ही मन में लुत्फानंदोज होने के लिए हफ्ते भर से सुबह दफ्तर 8 बजे से भी पहले आने लगे थे। फिर एक दिन ये बात सलमा ने तमाम दफ्तर को बता दी। सलमा उनकी इस अदा पर खूब कहकहे लगा रही थी। वो अक्सर ही शराजी साहब की जिंदगी की अंदरूनी बातें बताया करती थी। वो दरअसल उनके बहुत नजदीक थी, जिसका सबूत ये था कि शराजी साहब सलमा को अपने कमरे में कई कई बार बुलवाते थे और कभी कभी वो अपनी गाड़ी भी उसे इस्तेमाल करने को दे दिया करते थे। सलमा की शोहरत इसी लिहाज से कुछ अच्छी ना थी। फिर उन्हीं दिनों दफ्तर में एक साथ 6 लड़कियां मजीद रख ली गईं। अब शराजी साहब की नजर इनायत सिर्फ सलमा तक महदूद रहने के बजाय इन 6 लड़कियों पर मुनकसिम हो गई। इन लड़कियों की वजह से चूंकि सलमा की अहमियत कम हो गई थी, इसलिए सलमा इस अदम तवज्जी की वजह से तवज्जी की शिकायत खुल्लम खुल्ला करने लगी थी। शराजी साहब अपनी पोजीशन को खराब होने से बचाने की फिक्र में पड़ गए और फिर उन्होंने दूसरे अदारे में सलमा को हायर ग्रेड पर भिजवा दिया। सलमा भी खुश हो गई और शराजी साहब की मुश्किलात में भी कमी हो गई। अब मुकाबला और भी सख्त था। तो ये तमाम लड़कियां शराजी साहब के कमरे से बाहर आकर एक दूसरे से बढ़कर ये जाहिर करने की कोशिश करती कि शराजी साहब सिर्फ उन्हें ही अहमियत देते हैं। फिर इसी साल शराजी साहब ने शबनम को कमीशन से पास करा दिया। फिर खबर उड़ी कि इस बरस एक नई लड़की तबस्सुम का भी अपॉइंटमेंट हो रहा है। शबनम को दफ्तर ज्वाइन करते ही सबसे पहले ये असाइनमेंट मिला कि हैदराबाद जाकर कुछ फोटोग्राफी करनी है, जिसमें शराजी साहब और शबनम को भी साथ ही जाना था। सो शबनम ने आते ही शराजी साहब का दिल मोह लिया। शराजी साहब के इतने किस्से गर्दिश करते थे कि इस्मत उनसे खौफ महसूस करने लगी थी। फिर एक रोज उसकी करीबी सहेली गजाला ने बताया कि आज शराजी साहब ने उसे बुलाया था और कहा था कि गजाला, अगर तुम चाहो तो एक अफसर की जगह खाली है, तुम्हारी तरक्की हो सकती है। गजाला बाखूबी जानती थी कि एक क्लर्क से अफसर तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना है। वो बोली, सर मेरी तो मंगनी हो चुकी है और मैं तो किसी भी वक्त नौकरी छोड़ दूंगी, इसलिए अफसर बनकर क्या करूंगी। शराजी साहब बोले, अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। शराजी साहब इंतहाई नफीस आदमी थे। वो किसी भी मामले में जोर जबरदस्ती के कायल नहीं थे। अलबत्ता गजाला का दूसरे ही रोज उनके पास से तबादला हो गया। गजाला ने भी शुक्र अदा किया, लेकिन अब मुश्किल इस्मत के सामने थी। उसे रोज फाइल लेकर उनके सामने कमरे में अकेले जाना था। वो घबरा रही थी कि अगर उन्होंने उससे कुछ कह दिया या कोई बात हो गई तो उसकी दफ्तर में क्या इज्जत रह जाएगी। वो सोच सोचकर परेशान थी। उसे दीगर लड़कियों ने यही बताया था कि शराजी साहब पहले पूछते हैं कि क्या तुम्हें शेर पसंद है, कोई शेर सुनाओ। फिर खुलते खुलते कहते हैं, तुमने कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद तो किया होगा। फिर हाथ की रेखाएं देखने की जिद में हाथ पकड़ते हैं, किस्मत का हाल बताने लगते हैं। किस्मत बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसे जो काम दिया गया था वो उसे करना ही था। इनकार की कोई वजह उसके सामने ना थी। दूसरे रोज इस्मत फाइल लेकर शराजी साहब के कमरे में पहुंची। उन्होंने फाइल लेकर वर्क देखना शुरू कर दिया, कुछ हदायत दी और फाइल पर साइन करके इस्मत के हवाले कर दी। इस तमाम दौरानिये में शराजी साहब ने एक बार भी इस्मत की तरफ नजर भरकर नहीं देखा।
वो नजरें नीचे किए किए बात करते रहे और तमाम वक्त बीबी बीबी कहकर मुखातिब करते रहे। इस्मत ने खुदा का शुक्र अदा किया और उसे यकीन हो गया कि शिराजी साहब किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि एक मर्तबा जब वो अपने दौरे पर थे तो उनके लिए शराब के साथ साथ कुछ खवातीन का भी इंतजाम किया गया। एक दिन उनके सामने एक ऐसी लड़की भी लाई गई जिसकी उम्र सिर्फ 14 बरस थी। शिराजी साहब ने ये कहकर उसे लौटा दिया कि ये उनकी बेटी की उम्र की है, और ये शिराजी साहब की आला दरफी ना थी तो क्या थी। शिराजी फितरतन बुरे नहीं थे, लेकिन हालात, माहौल और किसी साजिश के सबब उन्हें शबाब और शराब में डुबो दिया गया था। कम अज कम मिसेज यास्मीन शिराजी का तो यही ख्याल था। वो शिराजी की इस आदत से पूरी तरह वाकिफ थी, और जब उन्होंने अपनी सी पूरी कोशिश करके देख लिया कि वो ये आदतें तर्क नहीं कर सकते, तो उन्होंने घर में एक पोर्शन शिराजी और उनके मशागिल के लिए मखसूस कर दिया, जहां बच्चों को जाने की ममानियत कर दी गई। शिराजी अपनी महफिलें रात गए तक वहीं सजाते। यूं वो शराब पीकर इधर उधर लुढ़कने के बजाय घर तक महदूद हो गए। यूं मिसेज शिराजी और उनके बच्चों का भरम भी रह गया। मिसेज शिराजी ने उन्हें महदूद तो कर लिया था, लेकिन ये गम उनके वजूद में कैंसर बनकर उतरता जा रहा था। फिर सुना कि मिसेज शिराजी के गुर्दे और जिगर खराब हो गया। वो कई मरतबा मुल्क से बाहर इलाज के लिए गई, लेकिन एक औरत के शिकस्त का जहर उनके वजूद को तबाही से न बचा सका। शिराजी के शरीक उनके साथी है यास्मीन शिराजी के शरीक उनकी साथी और उनके साथी यास्मीन शिराजी की एक एक अदा पर मर मिटने को तैयार रहते थे। वो कहते, बाखुदा मिसेज शिराजी में वो हुस्न, वो जादू है कि हमें वो एक बार मिल जाए तो उम्र भर किसी और औरत की तमन्ना ना करे। ये पागल शिराजी जाने किस मिट्टी का बना है, इतनी खूबसूरत बीवी घर में है और बाहर भटकता फिरता है। एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि शिराजी की बेटी और बीवी में भी अगर किसी का इंतखाब करना हो तो हम बेटी का साफ जगमगाता रूप छोड़कर यास्मीन शिराजी के ही जादू भरे हुस्न का इंतखाब करेंगे। यास्मीन शिराजी का हुस्न तो मलूकती हुस्न था, उसके आगे सफेद रंग और हर जवानी भी मान थी। ये तमाम बातें मिसेज शिराजी तक भी पहुंचती थी। वो तमाम उम्र शिराजी को तो ना रोक सकी, और अब अपनी बेटी की इज्जत पर आंच ना आ जाए, इसी ख्याल से शिराजी से कभी कभी लड़ बैठती। शिराजी, अब तुम बुढ़ापे की दहलीज पर हो, अब अपनी बेटी के लिए अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। शिराजी हूं हां करके टाल जाते। यास्मीन कहती, शिराजी कहीं किसी की बद्दुआ हमारी दुनिया को वीरान न कर दे, अब भी वक्त है, तौबा कर लो। मगर शिराजी इतने आगे बढ़ चुके थे कि अब पलटना मुमकिन ना था। और फिर एक दिन मालूम हुआ कि मिसेस शिराजी बहुत बीमार हैं। उन्हें शिराजी इलाज के लिए फौरन लंदन लेकर रवाना हो गए, लेकिन शिराजी वापसी में खाली हाथ लौटे। मिसेस शिराजी साथ छोड़ चुकी थी। मिसेस शिराजी के सीने पर जो खौफनाक सदमा था, वो वाकई किसी भी माँ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता था। मिसेस शिराजी की मौत से एक हफ्ता कबल शिराजी के घर में डाका पड़ा, और डाकू दौलत के अलावा घर की वो कीमती शय भी साथ ले गए जिसे शिराजी ने सारी जिंदगी कभी अहमियत ना दी थी। डाकुओं ने तमाम घर वालों के सामने बारी बारी शिराजी की बेटी की आबरू तार तार करके अपनी जमीनों पर रहने वाली हर बेटी, बहू, बहन, बीवी की आबरू का बदला ले लिया था। मिसेस शिराजी के मौत के हफ्ते भर बाद ही बेटी नाजनीन ने भी खुदकुशी कर ली, और शिराजी ने 40वें के बाद एक और शादी कर ली। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा अफसाना आपका। बहुत खूब जी, बहुत खूब। मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा, जो कि बहुत अच्छी शायरा, कालम निगार, अफसाना निगार और हमारी आपकी बेशुमार खूबियों की मालिक है, और इनके नाम पे कराची में एक रोड भी है। बहुत अच्छा अफसाना पेश कर रही थी। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जरूर कहना चाहिए, जो दीगर अखबार हैं उन्हें भी, इसलिए कि जो हमारे यहाँ अफसाने की सूरत हाल है वो बड़ी अहमियत इख्तियार करती जा रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। और वो मौजूदात भी जो हमारे समाज में जा बजा बिखरे हुए हैं, उन्हें अफसाना निगार अपने इजहार के लिए चुन लेता है। तो मैम ने जिस मौजू का इंतखाब किया है, उसे अफसाने की जो हायत है, उसकी जो तकनीक है और अपने उसलूब, तीनों
शिकतों से एक ऐसी कहानी का ताना बाना बुना है जो फनी बारीकियां अपने अंदर रखता है। तो उसमें देखें एक दफ्तर का माहौल पेश किया गया है, और उससे पहले मैम ने बड़ी हुनरमंदी से शिराजी और उसकी बेगम के जो जाती अहवाल हैं और उनका खानदानी पस मंजर है उस पर भी रोशनी डाली। फिर शिराजी जिस तरह इसका एक मरकजी किरदार है, बेराह रवि का शिकार होता है और अपनी खूबसूरत बीवी के होते हुए जिस माहौल और जिस दलदल में वो उतरता चला गया, फिर वहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो मैम ने अपने तिलिस्मकारी का जो एक पहलू है, अभी आप मैम कह रही थी कि वो अफसाना निगार, और ये खुद एक निगार है, एक निगार जी खाना है। बिल्कुल, एक अनमोल गौहर है ये हमारे साथ माशाल्लाह। ये इनकी तारीफ इनके आगे कम पड़ती है माशाल्लाह ये। जी जी। में, इनके फन में, इनके उसलूब में और इनकी फिक्रियात में कई पहलू हैं जो अभी हमारे सामने नहीं आए, और ये हर मौजू पे बात करने का हुनर जानती हैं। इसलिए कि ये बात जो बात करने का हुनर जानते हैं ना, उसके लिए कोई मौजू पुराना भी हो, दोहराया भी गया हो, तो वो उसको अपने उसलूब की वजह से नया बना देते हैं। तो मैम ने यही काम इस अफसाने के हवाले से किया है। तो दफातर में जो हमारा एक सिलसिला है, उसमें जो एक मुसाबकत का एक होता है, एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, एक मुकाबले की फिजा होती है। लेकिन ये मुकाबला अगर मुसाबकत की सूरत इख्तियार कर ले और एक सेहतमंद तरीके को लेके आगे बढ़े, तो इससे मामलात में बेहतरी आ जाती है। तो मैम ने ख़ास तबके को इस खाने में मौजू बनाया है, जो जिस तरह की खराबियों का शिकार इसका मरकजी किरदार हुआ, बिल आखिर उसकी सेहत की खराबी और फिर उसकी मौत की सूरत में वो हमारे सामने आता है। हम जिंदगी में बहुत कुछ अपने अंजाम से बेखबर होकर ऐसी गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर मजहबी हरकत करते रहते हैं अपनी जबान, अपने गुफ्तार और अपने अमल के जरिए। बाद में एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इंसान सिर्फ अपने पछतावे का इजहार ही कर सकता है। उसके लिए अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल हो गया हो चुका होता है, जैसे शिराजी के लिए मुश्किल हो गया। उसकी बेगम उससे समझाती है कि अभी वक्त है, आपकी औलाद है और आपकी जिम्मेदारी है इस समाज में, तो आप अब भी संभल जाएं। लेकिन वो संभलने के लिए इसलिए तैयार नहीं था कि वो बहुत दूर जा चुका था। सो वो फिर अपनी इस बेराह रवि की वजह से इतना दूर चला गया कि मौत को गले लगा लिया। बैरून मुल्क से भी वो खाली हाथ लौटा और वहां भी उसका इलाज मुमकिन न हो। लेकिन आखिरी जो जुमला है अफसाने में, एक पंच लाइन होती है और मैम ने उसका भरपूर इजहार किया है। आखिरी लाइन, आखिरी अल्फाज अफसाने को अफसाना बनाते हैं। ये तकनीक मंटो की तकनीक है कि वो अफसाने में जान डाल देते हैं। पहले एक बयानिया होता है, फिर कहीं कहीं आप देखें मैम ने मुकालमे का अंदाज भी अपनाया। लेकिन एक शिराजी दुनिया से चले जाता है तो एक और शिराजी गोया सामने आ खड़ा होता है। तो ये बहुत ही अहमियत इख्तियार कर जाता है अफसाना इस आखिरी जुमले की वजह से, कि एक तो अपना मंजर से गायब हो जाता है शिराजी, लेकिन उसकी जगह और हजारों शिराजी लेने के लिए तैयार होते हैं। एक जिस तरह नेक लोग होते हैं ना, उनका एक तसलसल कायम रहता है, कुदरत को यही मंजूर है। और दूसरी तरफ शैतानी कुव्वतों के हामिल जो अफराद हैं, उन्हें भी कुदरत ढील देती रहती है और वो एक के बाद दूसरा उसकी जगह लेता रहता है। तो ये तजादात की फिजा से उभरा हुआ जो है, अपनी तकनीक, अपने उसलूब
और अपनी हायत की बदौलत और अपने किरदारों की वजह से, अपने जानदार किरदारों की वजह से बहुत अहम है। मैं मोहतरमा ज़ेबी साहिबा को हदियत तहनीत पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा अफसाना लिखा और इस प्रोग्राम में हमें एक और अंदाज से बेहतरी की जानिब जो हमारा सफ़र है वो आगे बढ़ाए। आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नवाज कंवल साहब, आप कुछ रोशनी डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब ने बड़ा मुफस्सल इस पे अपने नुक्ता नज़र पेश किया, इज़हार ख्याल फरमाया आपने। तो मेरे ख्याल में जो शिराजी का किरदार है ये हमारे एक ऐसे ऑफिशियली तबके की तरफ इशारा करता है जो कि अपने उन मुलाजमीन का हर हवाले से इस्तेहसाल करते हैं जो कुछ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हर तरह के हरबे और हर तरह कर गुजरते हैं, जो काम जिंदगी में नहीं भी होते वो कर गुजरते हैं। तो अफसाना निगार की एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक ऐसे माहौल और एक ऐसे मौजू को पेश किया ऐसे किरदारों के जरिए जो हमारे मुआशरे में चारों तरफ फैले हुए हैं। और ये शिराजी जो है वो कई सूरतों में, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अगर एक शिराजी जाता है उसकी जगह कई और शिराजी जन्म ले लेते हैं। जी तो बहुत खूबसूरत और इंतहाई कामयाबी और गिरफ्त के साथ आगे बढ़ता है सिलसिला अफसाने में इन किरदारों का। और वही बात जो मैं करना चाह रहा था कि उन्होंने एक कितना खूबसूरत इख्तितामिया दिया है इस अफसाने को, चौंका देने वाला, कि ये सारा कुछ होने के बावजूद भी जाए इसके कि कोई उससे सबक सीखा जाए, इबरत हासिल की जाए। ये हमारे उस एक अशराफिया, उस एक बड़े तबके की तरफ वादे इशारा करता है कि जो मजहबियात को भी पसे पुश डाल देते हैं और सूदो ज़ियान से बेनियाज रहते हैं। कि उन्होंने एक नई शादी कर ली जबकि पता भी था कि सारे हालात ऐसे हैं, तो वो अपनी उसी एक बुराई की फितरत की तरफ चल पड़े, जिसका तसलसल डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया कि नेकी और नेकी करने वाले भी तसलसल से आते जाते रहते हैं। तो इस तरह जो बदी की कुवतें हैं या उनके जो किरदार हैं वो भी एक दूसरे के पीछे लाइन बना के खड़े होते हैं, वो भी चलते रहते हैं। तो ये हमारे एक बड़े ख़ास तबके की तरफ इशारा किया है। मोहतरमा ज़ेबुल निसा ज़ेबी साहबा की अफसाना हर लिहाज से बहुत खूबसूरत और एक मुकम्मल और एक ऐसा अफसाना है जो हमारे इस समाज के इस एक हकीकत जो है उसकी अक्कासी करता है, उसके बहुत सारे मसाइल से हमें आगाह भी करता है और नई राहें भी मुतय्यन करता है सोचने के लिए। तो एक शानदार मौजू है, बहुत अच्छा अफसाना। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो मोहतरम अरहम रोहान साहब, अगर आप ऑनलाइन है तो प्रोग्राम को लेके आगे चलेंगे? मेरा ख्याल है कि उनका नेट भी काम कर रहा है, इसलिए ऑफलाइन ही है। चले तो आगे मैं दावत देती हूँ मोहतरम जनाब असगर काजमी साहब को कि वो आए और अपना जो मकाला या जो भी आप सुनाना चाहते हैं, अपना माइक ऑन कर लें। असगर काजमी साहब, आप अपना माइक ऑन कर लें। आपको आवाज आ रही है? जी असगर काजमी साहब, आपको आवाज आ रही है? अपना माइक ऑन कर लें, माइक आपका बंद है, माइक ऑन कर लें। चले फिर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कंवल साहब, आप अपना पेश करें। उनको तो आवाज नहीं आ रही, ना वो माइक ऑन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी वालेकुम जी। सलाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा अफसाना सुना अभी मैडम साहिबा का।
डॉक्टर जी शफीक कादरी साहब ने और फिर डॉक्टर